Good morning, sir. ओके सर। तो बेटा ऐसा है कि एक छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा। एकदम छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और ओके सर। हाँ, इसका डिटेल वगैरह मैं सब समझाऊंगा। एकदम मेरा अपना एक तरीका होता है समझाने का। तो मैं पहले एक छोटा सा एक थ्योरी है बेटा, जिसका नाम है ठीक है, उसका नाम बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ओके। MOT। इसका सब चीज मैं दूंगा आपको इसका थ्योरी दूंगा, ठीक है। फिर इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो दूंगा, और कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दैट स्किल भी दूंगा आपको, ठीक है बेटा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या निकालने के लिए यूज होता है मालूम है? नहीं सर। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। एंड बॉन्ड ऑर्डर आपको मालूम है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यस सर। बॉन्ड लेंथ, और आपको मालूम है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेकिन सर आपने तो अभी तक वो वीडियो नहीं दिया जिसमें आप बॉन्ड ऑर्डर STRENGTH स्ट्रेंथ। हाँ, थोड़ा जल्दी बोलो बेटा, क्या नहीं दिया मैंने? सर आपने अभी तक वो बॉन्ड ऑर्डर और रेजोनेंस वाला वीडियो नहीं दिया है। हाँ, एक बार फिर से चेक करोगे बेटा टॉपिक वाइज? अगर मैं भी देख लेता हूँ, हो सकता है कि कहीं मिस हो गया होगा। मैं आज डाल दूंगा उसको, ठीक है बेटा। अगर नहीं डाला हुआ होगा तो डाल दूंगा, और डाला हुआ होगा तो बता दूंगा कि ये वाला वीडियो था, ठीक है बेटा। ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है सर। हाँ। सो चिल्ड्रन, ओके सर। ओके। children, a happy morning to all of you. And the today's theory is MOT, molecular orbital theory. Okay, children. So first of all, you should know the full form of MOT, children. So full form is molecular orbital theory. Okay. So from today onwards, at least anybody asks you, what is the full form of MOT? Okay. It is MOT. Okay. Yes sir. It's not MOT. Did you understand? Yes sir. MOT. Okay. Like this. Otherwise, in chemistry, Yes, one more thing is there. This is known as MO2. Did you understand? Okay. So today we are learning about MOTU या MOTI? MOTI. MOTI, MOT. Okay. So its name is molecular orbital theory, children. Molecular orbital theory. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Right. sir. Okay. So first of all, what is the name of the theory? Tell me. Molecular Molecular orbital orbital theory. In short, MOT. 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 Okay. MOT nahi. MOT. 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 And this one is known as MO2. Okay, so if you will use misuse of MOT like MOT, then there is a counter action is there, MO2. Okay, anyhow, I am in a very jolly mood because I think today Friday, no?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, anyhow. So when I get that, when I come to know that it is Friday, then I feel really happy because I know tomorrow is Saturday, and after Saturday there is one Sunday, big Sunday. Okay, so I am near to a Sunday. That's why on Friday I'm really very happy. Anyhow, so today we are going to learn about molecular orbital theory. Okay, it's a good theory, modern theory, modern theory. Okay, modern theory of for what? But definitely we are learning about chemical bonding. So for bonding purpose only we are using molecular orbital theory. So first of all, I will give you first of all theory part. I will give you at 3 o'clock. Okay. First today I want to use it. I want to make use of this theory. It's very easy. And then we will come to theory also, writing work. Verbally, I will be telling each and every fact and some exceptional cases also discussed. And you know, after learning molecular orbital theory, exactly what I am going to gain. So see, these are the bond parameters, children. Okay. We will get bond order. Do you know what is bond order? Already I have discussed you. Bond order means number of bonds. Yes, sir. Number of bonds between two atoms. Number of bonds between two atoms. And what is length? Atoms. Yeah, bond length means the distance between the two nuclei of the two atoms. Okay. And what is the bond strength? Okay, Bond sir. strength means Yes, the sir. energy required to break the bond. So you know, if number Bond. of bonds increases between two atoms, definitely it will be difficult to break the bond. So bond order is directly proportional to bond strength, and it is inversely proportional to bond length. If it is bond length is less, then bond order will be more, bond strength will be more. But if bond length is more, okay, then definitely the bond strength Then what rate is less? will be Less. will be less. Okay. Yes, sir. Okay. So okay, I have given a small introduction. Now let me move to some sort of idea which I want to give you is, see, you have to learn some names, children. You have to learn some name. Directly you have to learn some name. I will tell you each and every reason. Okay, don't get panic, but please try to think that I'm giving you some name. You have to learn it. Okay, and that names are some orbitals are there, children. See, orbitals are there. That S, P, D, F we have learned. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Then Yes, we have learned hybridization also. Yes, Yes, sir. sir. Okay, see, now I am giving you some more orbital. Their name will be also very different type. Okay, don't get panic. First of all, I am requesting you, don't get panic. Okay, so see, Okay, sir. don't get panic. One orbital is there. 1, 2, 3, 4. Okay, then two orbitals at a time, then one orbital, then two orbitals at a time, and then one again orbital. Okay, don't get panic. Okay, I'm telling you, it's my humble request. It is my style how to teach MOT. Okay, so anyhow, first I will use it, and then I will give you total theory. Then you will find it very interesting. Okay, so
Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. So good morning, all of you. Okay. See what I'm telling. These are some orbitals. These are some orbitals. These are some orbitals. Monty, Sir. इनको फोन करके बोलो तो सब क्लास में है. सब क्लास. So Sir, see. sir, हाँ sir, बोलो. sir, I have a sir confusion that a bond, sir, this one, sir, MOT, the fourth option. Fourth option, first, second, third, bond order. Means the bond order. Yes, sir, I can't understand. Okay, no problem. For that only I am there to explain. No, see, suppose one atom is there and one atom is there. Tell me how many bonds are there between two them? Between two. Sir, molecular bond. Okay, molecular bond is there, children. How many bonds are there between two atoms? Okay, I am getting lower words. How many dash between two atoms? अरे दो एटम के बीच में कितना डैश है बेटा? देखा क्वेश्चन. एक. और उसी डैश को बॉन्ड बोलते हैं. देखा था? पूछता है और कहाँ गायब हो जाता है. फिर कौन पूछ रहा था? हेलो, कौन पूछ रहा था? डायरेक्ट कोई नहीं बात करेगा. पहले उससे बात करने दो मेरे को. थोड़ा सा आज हिसाब किताब लगाने दो. कौन पूछा था बेटा ये? हेलो, देखा? पूछ करके इसको ना एक दिन मेरे को मिलने दो. ये इसको मैं अच्छा सा पार्टी दूंगा रेस्टोरेंट में ले जा करके. तो हेलो, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये टेक्निकल नाम है बेटा. बॉन्ड ऑर्डर का नॉर्मल वर्ड क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स. अब वो ऑर्डर काहे बोल रहा? अब मेरा बस का बात नहीं है. उसको किससे पूछना पड़ेगा जा करके. कोई हाँ ना बोलेगा मेरे को? हाँ सर. किससे पूछना पड़ेगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? नहीं मालूम है? इस कमेटी का नाम नहीं मालूम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. हाँ सर. ठीक है. और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता क्या एक्चुअली? सर नहीं पता सर. Yes, sir. Number of bonds. कौन बोला नहीं पता है? कितनी बार बोल चुका हूँ. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है. हाँ सर. बात करते रहो बेटा, बात करते रहो. ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट पढ़ाना है मेरे को. हाँ. बढ़ू आगे? हाँ सर. हाँ. What do you mean by bond order? Number of bonds. नंबर ऑफ बॉन्ड. ये दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है? One. एक. तो मैं इसको दो तरीके से पूछ सकता हूँ कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर बिटवीन दिस टू एटम्स? और what is the bond order? One. And हम थोड़ा स्टाइल से पूछ सकते हैं what is the bond order between these two atoms? One. Did you understand? Both are same. Yes sir. Okay. Okay. Okay Yes, sir. sir. Yeah. तो एक एक चीज का अलग अलग नाम है भाई. तुम लोग मैं कितनी बार बता सकता हूँ. He is suffering from कोरोना वायरस. एक लैंग्वेज. थोड़ा जो नॉर्मल टाइप के जो ज्यादा उनको बेचारे लोग को नहीं मालूम है स्किल वगैरह वो सब. मतलब वो लोग बोलेगा कोरोना, कोई तो बोलेगा करोना. कोरोना से डिस्टर्ब हुई है. देखो कोरोना. ओके. और थोड़ा सा स्टाइलिश. हाँ, थोड़ा सा स्टाइलिश रहेगा तो उसको बोलेगा यार इट्स ए मैटर ऑफ COVID-19. Did you understand? अब ये कोविड. हाँ, COVID-19, कोरोना, करोना,
ऑल आर सेम। Yes, sir. हाँ, हमको बस उसका इलाज चाहिए बस। चलो एनी हाउ, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाँ सर। नंबर sir. ऑफ Bond. Sir, the Bonds. number of bonds. अगर ए के बीच में ट्रिपल 3 तो बॉन्ड हो जाएगा, समझ गए? Yes, तो sir. बताइए इनको हाँ, सर। तोड़ना आसान हो जाएगा या मुश्किल होगा? मुश्किल. इनको पूरा सेपरेट करना इजी होगा या मुश्किल होगा? सर मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। उसी मुश्किल को बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। Yes, sir. और धीरे अगर डबल मल्टीपल बॉन्ड बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाएगी, तो जो डिस्टेंस उनका वो दूर हो जाएगा या और कम हो जाएगा? डिस्टेंस कम हो जाएगा. कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा? हाँ Yes, सर। sir. चलिए इन 3 बेसिक बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ूं मैं, आपकी अगर आज्ञा हो तो। हाँ Yes, सर। sir. ओके। हाँ हाँ, सर आपका नंबर मिल सकता है सर? ठीक है। अब देखो। सर हेलो। हाँ बोलो, बोलो बेटा। सर आपका नंबर मिल सकता है? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? अरे वाह, इससे सर अच्छा। हेलो। हाँ बोलो। सर आप थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हैं? हाँ, इसी का बस काम ही बाकी था। मैं समझ गया था कि अभी तक स्क्रॉल अप क्यों नहीं आया। सर एक्चुअली मेरा पता नहीं कि कनेक्शन वीक है, तो शायद वो आपका राइटिंग बहुत स्लो आ रहा है सर। नहीं, ए जा करके जितने भी तुम्हारे अगल बगल जितने भी नेटवर्क वाले हैं ना लोग, जस्ट यू फाइंड आउट एयरटेल, ओके, जियो, मारना पड़ेगा सर ना पहले पकड़ के एक बार सबको मेल आईडी डाल दो कि अगर आप 2 दिन के अंदर नहीं सुधारते हैं तो फिर आप अपने अंजाम के लिए रेडी हो जाइए। क्योंकि मैं मैटर सुभाष सर के पास देने वाला हूँ, ठीक है? और सुभाष सर केवल सर आप ही कुछ केमिस्ट्री, बोलिए ना सर। सुभाष सर खाली क्या केमिस्ट्री, बोलेंगे? हाँ, सुभाष सर इज नॉट ओनली ए केमिस्ट्री टीचर, ही इज आल्सो ए वेरी गुड एंड वेरी डायनामिक एडवोकेट पहुंचे आल्सो। हुए इंसान। हाँ, पहुंचे हुए इंसान है, एडवोकेट भी जोड़ देना, ठीक है? हाँ, बोलना बहुत खतरनाक चीज है। उनको शरीफ से रहने दो, एज ए कॉमन मैन रहने दो, ठीक है? बच्चों को पढ़ाने दो, उनको अच्छा एजुकेशन देने दो, ओके? डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब ए कॉमन मैन, ओके? हो गया सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक, इंट्रोडक्शन काफी हो गया, अब आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ सर, अब देखो, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, आई एम टेलिंग लाइक दिस दैट टुडेज थ्योरी इज MOT. It's there's no doubt that it is a modern theory. Absolutely, it is a modern theory. Okay. Yeah, and then there are some exceptional case that also I will discuss you. And first we will learn this skill. I will tell you first that skill and then theory. Theory I will give in verbal wise. Then I will at 3 o'clock I will make you write everything. And what is the use of this MOT? To calculate bond order, bond length, and bond strength. And first I will go for skill only. Skill means पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. घड़ी, डिटर्जेंट, आगे बोलो, टिकिया पाउडर, वॉशिंग पाउडर, कुछ तो बोलो. ठीक है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. सो अब देखो बेटा, पहले हम लोग फर्स्ट वी विल लर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. सर आप अपना वो गाना नहीं भेजे सर? ये इसको ना पकड़ के बेटा, इसको अनम्यूट करो तो सब लोग मिल करके. तो सी बेटा, this is molecular orbital theory and we are just moving towards skill. And for skill, see, you have to have some training, and that training is this one. See, the training is this one. What the training that I am telling you? The energy, everything is energy. Children, try to understand, everything is about energy. So this is the energy in level increases.
अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ये जो डब्बे डब्बे हैं, दिस बॉक्सेस है, एग्जैक्टली व्हाट दे आर, Yes, सी. sir. So I will give introduction, beta. They all are, Sir, I think they're orbits. they are molecular orbital theory. Oh, Okay, correct yourself. They are molecular orbital theory. theory. Orbital, you MOT. know, it is the place where electron exists. Orbital. Electron exist. Yes, sir. And if that orbitals are Orbital present in electrons. atom, they are known as atomic orbital. But if that orbitals, Yes, if sir. that particular place where electron exists is present in a molecule, then it will be known as molecular orbital. And any information about that is accumulated and given in a proper chart, in a proper way, then that is known as theory. So molecular orbital theory. Orbital theory. Okay, beta? Okay, sir. Okay. Okay, sir. So Okay, what these are? So these are MO. These are MO. Capital M, capital Molecular O. orbit. Means molecular orbital. So what is the full form of MO? Molecular orbital. Molecular orbital. हाँ, स्पीकर के बगल में आ जाओ और अच्छा से बात करो, गहरी गहरी सांसें मत लो, सब चीज पे कंट्रोल करो बेटा. So these are molecular orbitals. Okay, they present in molecules. ये दो चीज याद रखो. Okay, molecules. ठीक है सर. हाँ, अच्छा, मॉलिक्यूल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है या बहुत सारा न्यूक्लियस होता है? सर एक न्यूक्लियस होता है. उठा के नहीं, फेंक दें किसी दिन, तुम सर मेरे को मिल बहुत जाएगा. सारा तुम- होता है. बहुत सारा न्यूक्लियस होता है. बहुत सारा न्यूक्लियस बहुत होता सारा. है. हाँ, तो दे आर पॉलीसेंट्रिक. पॉलीसेंट्रिक. डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर. Yes, और sir. एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है बेटा, हाँ सर. हाँ सर. तो उसको कहते हैं मोनोसेंट्रिक. हाँ Monocentric. हाँ, तो एटॉमिक देखो कहाँ जगह है, मैं कहाँ लिख दूं मैं, ये सर देखो, नीचे सर. ये लो लिख सर, देता हूँ. नीचे. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल. सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म देख लो. मैंने बता दिया, सब तो लिखा ही लोगे तो फिर क्या मैं बताऊं. मैं सोच रहा था टाइम बचेगा. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाँ, सर. ये क्या है तब? सर Atomic orbital. एटॉमिक ऑर्बिटल. अब बताओ इसके अंदर में मोनोसेंट्रिक कौन होता है Atomic orbital. Atomic orbital. एटॉमिक और ऑर्बिटल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? Polycentric. सर पॉलीसेंट्रिक. पॉलीसेंट्रिक. हम धीरे धीरे इसी तरह से थ्योरी जोड़ते जाएंगे और जब पूरा यूज हो जाने लगेगा तो थ्योरी अपने आप खुद ही लिख लोगे. मैं यही चाहता हूं कि पहले इस्तेमाल कर लो, प्रॉब्लम बना लो, ऑटोमेटिक थ्योरी आपके भेजे में घुस जाएगा. मेरे को तो थ्योरी एक्सप्लेन करना है ना, मेरे को तो खाली शोबाजी नहीं करना है ना कि ओ वेल आई हैव गिवन दिस थ्योरी एंड दिस इज एंड दिस इज दैट एंड दिस इज दैट एंड दिस इज दिस एंड दिस इज दैट. बच्चों को समझ में आया नहीं समझ में आया उससे कोई मतलब नहीं. ऐसा मैं नहीं करने वाला. समझ में आई बात? हाँ हाँ सर. सर. हाँ, sir. मेरे को आर्टिफिशियल बच्चे को ऐसे धोना नहीं है कपड़ा. हमको सारी गंदगी साफ कर देनी है. बढ़ू आगे. हाँ हाँ सर. सर. तो हाँ, देखिए sir. मैंने क्या आप लेके प्रोग्राम बनाया. मैंने ये सब कुछ ऑर्बिटल्स लिखी हैं और ये सब एमओ है. ये लोग एओ नहीं है, याद रखना, एमओ है. ग्रीन सिग्नल दिए आप लोग? हाँ सर. हाँ सर. हाँ, sir. अब मैं इनका नाम लिखने जा रहा हूँ. ठीक है, चलो पहले वाले का नाम, चलो कोई अच्छा सा नाम दो. रमेश, शुभम, समीर, ओके, सर अपना नाम ले लीजिए. हाँ, सुभाष, प्रिया, रिया, सबका. लेकिन ऐसा नाम नहीं है बेटा. कितना होता, इतना इजी नाम होता तो कितना मजा आता. हाँ सर. हाँ. बट नाम अब माइंड, अब ना दिल को स्ट्रॉन्ग करके लिख लो. बहुत खतरनाक सर नाम आने केमिस्ट्री वाले में हैं. कुछ इजी नहीं हो सकता. ठीक है, अब देखो इसका नाम है बेटा, पहले वाले का नाम है सिग्मा. सिग्मा. हाँ, हेलो. हेलो हेलो सर. सर. हाँ, कोई हेलो एक जन सर. मेरे से बात करते रहो. पहले वाले का क्या नाम है? सिग्मा. आपको जानकर खुशी होगी, दूसरे वाले का नाम भी सिग्मा है. हाँ हाँ सर. सर. हाँ, हाँ सर. तीसरे वाले का सिग्मा. नाम भी सिग्मा है. अब ठीक है.
चौथे वाले का नाम भी सिग्मा है। सर सबका नाम सिग्मा है तो फिर अब ये जो दो बॉन्ड एक साथ दिखाए हुए हैं ना बेटा, दो बॉन्ड, हाँ हाँ सर सर, ठीक है, जब दो बॉन्ड एक साथ दिखाई दे रहे हैं, दो ऑर्बिटल एक एक साथ दिखाई सिग्मा दे एक रहे हैं, पाई। हाँ, तो इसका नाम है पाई और इसका नाम भी पाई है। तो याद रखिएगा ये बॉन्ड नहीं है, ये ऑर्बिटल है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर पाई किसके लिए? हाँ सर। जब दो दो ऑर्बिटल एक साथ सर, दिखाते पाई हैं किसके एमओ में, पाई बॉन्ड अच्छा। नहीं है, ये नाम बता रहा हूं मैं। अच्छा सर, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है कि एक सिग्मा है बाकी सब पाई है। ठीक है सर, मैं नाम बता रहा हूं, नाम, ठीक है ठीक है ठीक है सर, सर। नाम है ये नाम। इट इज नॉट सिग्मा बॉन्ड, इट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिटल्स ऑफ एमओ। ठीक है सर, नाम है सिग्मा। हाँ, सर, सिग्मा ठीक है। बॉन्ड भी हो सकता है, सिग्मा नाम भी हो सकता है। सिग्मा ठीक है, कोचिंग सर। सेंटर, सिग्मा रेस्टोरेंट, सिग्मा कॉलोनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस हाँ सर, सर, इसलिए ये Yes, sir. नाम है, नाम। इसको सिग्मा और पाई बॉन्ड से डिस्टर्ब मत करो। आ गई बात समझ में यहाँ तक? हाँ हाँ सर, सर, हाँ, हाँ सर। ठीक है। हाँ, फिर ये, फिर आप देखिए एक ऑर्बिटल है, फिर इसको क्या कहेंगे? सिग्मा, फिर इसको क्या कहेंगे? सिग्मा, पाई, फिर पाई, इसको क्या कहेंगे? सर पाई, सिग्मा, सिग्मा। सिग्मा। कोई दिक्कत नाम में? कैसा लगा नाम सब? सर बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन इसका डीमेरिट बताओ, ये नाम सिस्टम का डीमेरिट बताओ। सर टू मच कॉन्फ्यूजिंग। कैसे बेटा कंफ्यूजिंग क्यों है बताओ? आज प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर डालते हैं। सर क्योंकि सबका नाम एक ही है। वाह वाह, व्हाट ए क्वेश्चन ऑफ द डे। गुड स्टार्टिंग, गुड स्टार्टिंग। ओह, व्हाट ए इंटेलेक्चुअल पर्सन ही इज। देखिए इसमें 1 2 3 Thank you, 4 sir. 5 6 7 8 9 10 एमओ बना हुआ, 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ उसके सर, अंदर में 1 2 3 4 5 6 जन का नाम एक जैसा लग रहा है कि नहीं? हाँ हाँ सर, सर, और हाँ 4 हाँ, जन का सर। नाम एक जैसा लग रहा है कि नहीं? हाँ सर, हाँ हाँ सर, सर। लेकिन आपने जल्दीबाजी कर दी है ये बोलने के लिए कि सबका नाम सेम है। आपने अभी खाली नाम आधा सुना है बेटा, आधा। समझ गए? हाँ इसलिए सर, कभी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को लेकर के मतलब डिस्टर्ब मत होइए, ठीक है? पता था एक अशोक, फिर दूसरा स्टूडेंट भी अशोक था, तो बोलेगा अशोक, अरे एक का नाम तो सुनो, पूरा कंप्लीट तो सुनो। एक था अशोक शर्मा और एक था अशोक चौधरी, तो दोनों अलग हुए कि नहीं? हाँ हाँ सर, सर हाँ हुए। सर। हाँ, तो आधा नाम सुन करके ये एक है, एक है, एक ही है, एक ही। अरे क्या कर रहे हो? तो आप देखो, मैं पूरा नाम लिख रहा हूं अभी, पूरा टाइटल वाइटल के साथ। देखो, नहीं आप बोलो तो लिखो, नहीं तो नहीं बोलो। हाँ सर हाँ लिखो। सर, लिखिए हाँ, सर। ये देखिए वरना इसका प्रॉब्लम हो जाता पहले है। पहले वाले का नाम है, पहले वाले का नाम है सिग्मा। अच्छा कलर इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा 1s। आया बात समझ में? अब हल्का सा लगा कि नाम चेंज हो रहा है, हाँ सर, हाँ 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 सर। सर, हाँ सर। ठीक तो है? अगले ऐसे का नाम होगा शायद सिग्मा 2s। सिग्मा 2s सर। हड़बड़ाओ नहीं, हड़बड़ाओ नहीं, थोड़ा टीचर पे भरोसा करो, ठीक है? ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बढ़ू आगे? हाँ हाँ सर, सर। हाँ, ये हाँ देख, सर। हाँ, ये AB1s है। अब फिर मत बोलना कि दोनों का नाम सेम हो गया, हम भी कंफ्यूज हो गए। अरे कभी कभी 3 टाइटल होता है भैया। हेलो? हाँ सर, हाँ हाँ, सर, हाँ सर। अभी तो सर। अशोक था पहले, फिर शर्मा था, फिर चौधरी था। समझ गए बात को? हाँ सर, मान लेते 2 जन हो गया, अशोक हाँ, शर्मा, सर। अशोक शर्मा। तो हमको अब तीसरा टाइटल में जाना पड़ेगा, ठीक सर है? AB1s लिख लेते हैं। हाँ, ए लिखना पड़ेगा, बी, नहीं तो उसका रोल नंबर कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ सर, तब इतना जल्दीबाजी मत करो। हाँ, ये कौन है? सिग्मा, और बगल में क्या लिखोगे? सिग्मा 1s, क्या लिखा बेटा? 2s, सिग्मा 1। ये कौन है?
फिर ये बॉन्ड कौन बोल रहा है? ये इसको पकड़ो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बॉन्ड नहीं है, ये ऑर्बिटल का नाम है। ऑर्बिटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। हाँ सर। सिग्मा बॉन्ड मत बोलो, ये नाम बता रहा हूं मैं ऑर्बिटल का। बढ़ू? ऑर्बिटल। हाँ सर। ऑर्बिटल। हाँ ओके, सर। चलिए इसका नाम है, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 2px कर लेते हैं, ऐसा नाम है ये। इसको कर लेते हैं 2py। दोनों पाई था, हाँ हाँ सर। सर। हाँ दोनों सर। में 2p लिखा है। हाँ सर। हाँ सर। कौन सा टाइटल में जाके चेंज हुआ? एक्स नीचे वाई। वाला। एक्स और वाई। ये कौन नीचे वाला ऊपर वाला बोल रहा है? पहला। एकदम कोई बात नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज, आप अपनी जगह नॉर्मल लैंग्वेज के साथ सही हो। बी स्टाइलिश, बी स्टाइलिश। स्टाइलिश। बढ़ो आगे बेटा। हाँ सर। सर। चलिए हाँ ये सर। सिग्मा, हाँ ये सिग्मा है। इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2p x तो लिख दिया, y लिख दिया, तो z लिखो, 2pz। 2pz। या हो गया? नाम है साहब, नाम में चिंता मत करो, नाम में फंसोगे कि ले इसका नाम अशोक कुमार सिंह क्यों लिख दिया, अशोक कुमार वर्मा क्यों लिख दिया। क्या यार, नाम में क्या पड़ा है? समझ गए? नाम समझ गए? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, नाम में चिंता मत करो। ये देखो इसका नाम, अब देखो फिर प्रॉब्लम आ जा रहा है, 2px 2py और इसका नाम फिर 2pz। 2pz। हाँ, अब थोड़ा सा ऐसा लगा कि नाम अलग अलग है, हाँ सर। हाँ सर। फिर भी कोई गड़बड़ी नजर आ रहा है क्या आपको? हाँ हाँ सर। सर। क्या हाँ गड़बड़ी आ सर। रहा है? नहीं। नहीं आ रहा है गड़बड़ी? हाँ सर, आ सर रहा आ है। रहा है सर। हाँ, एकदम आ रहा नेचुरल है। रहो पढ़ते समय। यू शुड बी वेरी नेचुरल ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस wherever you because I know where the student has to face the problem. Where is that problem? Tell ठीक me. है सर। Where is that सर problem? कुछ नाम रिपीट हो रहा है। Yeah, सर एक ही नाम this रिपीट is हो the रहा है सर। second. This is the second chance. Second wicket today. Second wicket in chemistry. Good match. Good match. पहले तो लगा बहुत सारे नाम एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखने के बाद पता चला नहीं, कुछ कुछ नाम अलग हैं। अलग है। लेकिन फिर भी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, and still we are finding that some names are similar. ओके बच्चों? हाँ सर। ओके, आप देखिए कौन कौन सा नाम सेम है। सर पहले दो। पहला वाला, तो एक काम करते हैं, सर पहले दो। हाँ ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, देखो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बच्चों जो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाँ सर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी होता है बेटा, एमओ, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एमओ, पढ़ो बॉन्डिंग एमओ, पूरा नाम पढ़ो इसका, बॉन्डिंग बॉन्डिंग एमओ। मॉलिक्यूलर। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक होता ऑर्बिटल। है, आप देखिए, एंटी बॉन्डिंग एमओ, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके के होते हैं, एक जो चाहते हैं कि बॉन्ड बने और एक चाहते हैं कि नहीं बने। बॉन्ड नहीं बने। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ तो इंट्रोडक्शन, सर, मैं और थोड़ा बाकी ये सब नाम तो bonding सुना और, होगा, बहुत बाकी सब तो सुना होगा आपने। आज ये पॉलीसेंट्रिक पहली बार सुना होगा आपने, ओके। हाँ सर। हाँ सर। और उम्मीद करते ये एंटी बॉन्डिंग आपने पहली बार सुना होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो नहीं सर। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए, एंटी बॉन्डिंग का, जोरदार तालियों से। पहली बार आए हैं हमारी मीटिंग में, जोरदार मैंने ताली सुना से है इनका स्वागत किया anti-bonding। जाए। किसका? एंटीबॉडी का। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये पहली बार आए। हालांकि इसके काम अच्छे नहीं है, हाँ। दे आर नॉट गुड पीपल, they are If not, you tell you- they are not good for society. They are anti bonding. Anti bonding means
They don't want to make bond between two atoms. यहाँ तक समझ में आई? एटम हो। हेलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, बात समझ में आ रही होगी तो हाँ बोलना, नहीं तो काउंटर क्वेश्चन करो। तो मैंने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके के होते हैं भैया, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। हाँ सर। बॉन्डिंग वाले लोग बेचारे लोग जुड़े रहते हैं, अपनी ताकत लगा के, मतलब लगते हैं कि चलो जुड़े रहे, और एंटी बॉन्डिंग वाले लोग होते हैं कि इसको तोड़ो रे बाबा, रहना चाहता है। हाँ, तोड़ो तोड़ो। हमारे देखिए पूरे देश के अंदर में दो प्रकार की ताकतें काम करते रहती हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि भाईचारा बने रहे, उसको कहते हैं बॉन्डिंग। कुछ लोग चाहते हैं कि सब एक दूसरे से लड़े मरे कटे भागे इधर, नहीं समझे बात को? हाँ। ऐसी ताकत। हाँ सर, मैं मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बॉन्डिंग का मतलब होता है बेटा, बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। ओके, रिश्ता या रिश्ता। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आपको नाम मालूम है, सिग्मा पाई वगैरह, समझ गए? सिग्मा पाई। लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन जब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रहने का जगह, ऑर्बिटल। हाँ सर। बढ़ू आ गया? ठीक है, समझ गए सर। हाँ, हाँ, आ सर, गई है? हाँ सर। समझ में आएगा कैसे नहीं बेटा? सामने कौन बैठा है आपके? आप सर। सुभाष चंद्र सर। या नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ सर। ठीक है, अब देखिए किसने ये नाम पहली बार सुना है? ओके, कौन सा सर? माफ कर दे बेटा, मेरे को माफ कर दे। Have you watched शोले मूवी? हाँ सर। यस सर। उसमें बेचारी वो बसंती कितना बार अपना नाम बोलते रहती है, फिर भी पूछती है कि आपने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा। तो अमिताभ बच्चन पूछता है तुम्हारा नाम क्या है बसंती? नाम क्या है बसंती? अगर जैसे किसी का नाम अशोक है, अगर मैं उससे पूछूं तुम्हारा नाम क्या है अशोक, मैं भूल गया। तुम्हारा नाम क्या है अशोक? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है और तुम लोग मेरे को बात में फंसा रहे हो। देखो, तो मैं ये बोलने चाह रहा था कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो दो प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के, एक बॉन्ड बनाने वाले और एक तोड़ने वाले। हाँ तोड़ने वाले। ठीक है, फिर भी हाँ तो मान लेते हैं, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ए और ए के बीच में बॉन्ड बना है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं लाइव देख रहा हूं कि दोनों लोग जुड़े हुए हैं, इसका मतलब किसकी ताकत ज्यादा है, बॉन्डिंग वाली की या एंटी बॉन्डिंग वाली की? बॉन्डिंग वाले की। बॉन्डिंग वाली की। जिस दिन एंटी बॉन्डिंग वाली की ताकत ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड बनेगा या टूट जाएगा? टूट जाएगा। गुड आंसर, गुड आंसर, गुड आंसर। बढ़ू आगे अभी? हाँ सर। हाँ ओके, सर। ठीक है, सर इन लोगों का नाम ठीक नहीं हुआ। अभी ठीक कर देता हूँ। तो इसीलिए तो वही मैंने मैं कहा पूछने था, वाला था। इसीलिए तुम लोग टाइम कहाँ दे रहे हो मेरे को जल्दी। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए मैं स्मॉल बी लिखूं, स्मॉल बी, हाँ सर। और एंटी बॉन्डिंग हाँ, के लिए स्मॉल ए लिखूं? हाँ सर। बी लिखूंगा मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ए लिखूंगा मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। हाँ, आगे बढ़ू? हाँ सर। अच्छा, हाँ, और सर। एक चीज है, अगर आपका दिल इससे भी ना खुश हो, ए का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो और स्टाइल चाहिए, तो एल लो, स्टाइल में भरवा दे। देखो ऐसा स्टार मार्क लगा देना। क्या पसंद है, ए लिखना पसंद करोगे या ऐसा मार्का लिखना? इसको बेटा क्या कहते हैं, इस मार्क को? स्टार सर। स्टार कुछ बोलते हैं या स्ट्रिक या कुछ बोलते हैं। ओके सर, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। सर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है ये? नहीं, ये होता है मल्टीप्लाई, ये होता है एडिशन, ठीक है, ये होता है डिवीजन,
ठीक है, अब ये सिखाएंगे। और ये होता है सब। और क्या करेंगे अब बताइए, क्या करूं मैं? इतना अच्छा रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वही बात कर रहे हैं, 2 रुपया का हरा मिर्चा मिलेगा रेस्टोरेंट में जाके बोल रहे हैं। ओह भगवान, हे भगवान। चलो बढ़ो आगे। ये कहीं भी मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है। आज से कितना साल पहले पढ़ा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का ये साइन होता है, मेरे को आज तक क्लास याद। 2 में पढ़ा था। ठीक है चलो। सर मैंने क्लास 1 में। तो अब देखो बेटा, अब देखो, अब मैं अगर टाइम खत्म हुआ और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो ये जो बीच में डिस्टर्ब कर रहा था ना बात कर करके, समझ गए, तो मैं उनको कैटेगराइज कर दूंगा कि 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। नहीं सर। हाँ, इसीलिए मेरे को काम करने दो, मेरा काम करने दो, मैं ऑपरेशन थिएटर में बैठा हूँ। ठीक है, तो जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है बेचारा, उसको ऑपरेशन करने दो ना। बार बार उसको फोन में बात करना, बार बार उससे, एक बेचारा थिएटर में किसी का हार्ट उठ काट के बैठा हुआ है, और फिर उसको जाकर डॉक्टर साहब को 1 मिनट बाहर आइए ना सर, डॉक्टर सर आइए 1 मिनट आइए, आप चाय पीते हैं? अच्छा, आप नाश्ते में क्या करते हैं? अरे बाबा, उसको ऑपरेशन करने दो थिएटर में, वो हार्ट खोल के बैठा है दूसरे पेशेंट का। सर आप कौन सा मूवी देखते हैं सर? बेचारा अंदर गया, फिर बार डॉक्टर, हेलो सर, सर्जेंट बात करना, इधर आइए सर। अच्छा सर, आपका बेस्ट कौन सा क्रिकेटर कौन सा अच्छा है आपका? क्या करेगा वो डॉक्टर, बताओ। अब देखो, सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s है। अब देखो यहाँ से कहानी टर्निंग पॉइंट हो रहा है बेटा, टर्निंग पॉइंट। ये सिग्मा 1s, और मैं एक अच्छा सा कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके लिए, और इसको बोलूंगा बॉन्डिंग बेटा। यहाँ लगा दूंगा बी, ठीक है? हाँ सर। ओके सर। और यहाँ लगा दूंगा वो स्टार जिसकी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। अब बताओ, दोनों नाम चेंज हुआ कि नहीं? हाँ सर। अब सच चेंज हाँ हुआ, सर। अब सच हाँ, चेंज हुआ सर। हाँ सर, एकदम अब चेंज एकदम। हुआ। और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया, मतलब यस, ग्रीन सिग्नल, बॉन्ड बनाओ। और रेड सिग्नल का मतलब क्या है? एंटी बॉन्ड। एंटी बॉन्ड। हाँ, एंटी बेटा, हाँ एंटी एंटी, बॉन्डिंग। हाँ, अंटी मत बोलो, एंटी बॉन्डिंग। एंटी और अंटी जी में बहुत अंतर होता है। चलिए बढ़ जाऊं आगे। हाँ सर। ओके, अब देखो, और ये कौन है? ग्रीन सिग्नल, बॉन्डिंग। ऊपर लिखो नीचे लिखो परवाह नहीं, खाली बस सिग्नल सही यूज करो, ये भी बॉन्डिंग है, ठीक है? और अब ये देखो, ये सब रेड सिग्नल, एकदम स्टार मार्क लगा दो। हाँ सर। अब बताओ, सबके नाम अलग अलग हुए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब हुआ। अब कोई प्रॉब्लम? नहीं हाँ सर। नहीं सर। बताओ कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके सामने स्क्रीन में है? 3 सर 10। 4। 10। अब इन 10 में कितने लोग बॉन्ड बनाने वाले हैं? 4। सर उठा 4। के, उठा के फेंक देंगे, उठा के फेंक देंगे। सर 5। 5 है बेटा, हरा हरा ऐसे कलर देखो, 1 2 3 4 5। समझ में आई बात? सर 5 सर। और तोड़ने वाले हाँ कितने लोग हैं? 5। हाँ सर। आ गई बात सर, समझ 5 में? ही है। 5 सर। हाँ आप सर समझ में आया। ठीक है। अब देखो, अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, एक तो ऑर्डर ये है, ठीक है? तो ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? कहाँ बता दूं आपको, कहाँ बता दूं? ठीक है, ये हल्का हल्का, अब हल्का हल्का लग रहा होगा ना कि सीन क्लियर हो रहा है करके। हाँ सर। हाँ ओके ओके, हाँ सर। ठीक है। हाँ, ये वाला बेटा, ये वाला ट्रेंड इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर मैं हिंट दे रहा हूँ, केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केस सब होता है, मैं आपको आगाह कर देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। ये वाला जो मैंने जो एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया ना कि किसका एनर्जी ज्यादा है किसका एनर्जी कम है, ये एनर्जी मैंने यहाँ लिख दिया है बेटा। तो आप इससे आराम से बता सकते हो, अगर मान लेते हैं IIT में क्वेश्चन आया या मेंस में आया या कहीं भी आया,
तो आप बोल सकते हो ना कि किसका एनर्जी ज्यादा है। अगर ये दोनों के बीच में कंपेयर करे, ये दोनों के बीच में कंपेयर करे, ये दोनों के बीच में, तो बता दोगे ना किसका एनर्जी ज्यादा है। हाँ सर। हाँ ये सर। देखो मैंने यहाँ एरो लिखा हुआ ना, एरो ऐसा कि इस तरह से हाँ। एनर्जी बढ़ते जा रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये वाला जो डायग्राम है ना बेटा, ये वाला तब तक यूज करोगे जब तक आपके पास 14 चांद। इलेक्ट्रॉन्स रहे तब तक, 14। अप टू कंडीशन अप्लाइड है बेटा, है ना। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कंडीशन अप्लाइड रहता है बेटा, सब जगह रहता है। हम लोग वोट कब तक नहीं दे सकते जब तक हम लोग की उम्र कब क्या नहीं हो जाती है। 18। सर 18 ना हो तो जाए। कंडीशन अप्लाइड है कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तब अप्लाइड है। हाँ, तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया हो, इसमें दिक्कत क्या। दुनिया में इतना सारा कंडीशन लगा हुआ है, इतना लॉकडाउन लगा हुआ है, तो एक छोटा सा कंडीशन याद रखने में क्या जा रहा है आप लोग को। हाँ सर। 14 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। तो ये वाला लेवल कब तक इस्तेमाल करोगे। 14 इलेक्ट्रॉन तक यूज करोगे। एक इलेक्ट्रॉन में इस्तेमाल करोगे। नहीं आ रही ना, आवाज नहीं आई ना। मैं बोल रहा हूं अप टू 14। अप टू 14 का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक बेहिचक इस्तेमाल करो बेटा। सर 1 से लेकर 14 तक। आया बात समझ में। सर तो उसके बाद के लिए। हाँ सर। ठीक है, अभी बताता हूँ। ये लो, पूछो, तुम बताते जाओ, मैं धड़ाम धड़ाम बनाते जाऊंगा। ये लो, अभी बताता हूँ। लो, टाक टाक। हाँ सर बताइए। टाक 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 टाक। अब आप बोलोगे ले सर आपने तो वही बना दिया। हाँ, ये तो नहीं सर, ठीक थोड़ा है। डिफरेंट है। थोड़ा अलग है। थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो एनी हाउ देखो, मैं सबका नाम फटाफट लिख देता हूँ, अब ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 2, नाम है ये, बॉन्ड नहीं है। अच्छा सर। सिग्मा 2s। आपने ओके, ऐसे बोला सब डर गए सर। डरना भी चाहिए थोड़ा थोड़ा। 2pz, ये कौन है, ये था पाई 2pz, ये था कौन, नहीं पाई नहीं था यार, सिग्मा था ये। ठीक है, सिग्मा 2pz, और ये था पाई हाँ सर। 2px, और ये था पाई 2py। ये कौन था, पाई 2py, और ये था पाई 2px, और ये कौन था, सिग्मा 2pz। बहुतों को लगेगा नाम सब सेम साम है, लेकिन आपने देखा कितना चेंजेस है। चलो, हाँ सर। अब हम ग्रीन सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग। ठीक है, और अब देखो, ये सब मैं सर थ्योरी नीचे दूंगा वाला आपको, वाई था। मैं सबका थ्योरी दूंगा, आप चिंता मत करना। ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। ये कब इस्तेमाल करोगे, ये कब इस्तेमाल करोगे, जब आपके इलेक्ट्रॉन मोर देन 14। आ गई बात समझ में। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और आपने देखा होगा बहुत बारीक डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल छोटा सा एक डिफरेंस हुआ है, वो कि ये वाला जो चीज है ना, वो खाली बस बीच में इधर आ गया बस, और कुछ नहीं हुआ। हाँ बस सर। हाँ। ठीक है बेटा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये छोटा सा इधर आ गया तो एक पूरा लुक ऐसा हो गया। लेकिन एनी हाउ, आज से आपको याद रख लेना है, आज से याद रखना है कि 14 इलेक्ट्रॉन तक ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद वाला ये इस्तेमाल करेंगे। ये ऑर्डर वगैरह ऐसे क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं आपको सब समझाऊंगा, क्यों चेंज हुआ वगैरह सब तो उसके बाद समझाऊंगा। का क्या बोल रहा है ये, कौन है ये। ओ अच्छा ठीक है, समझ गया सर। हाँ
कि क्या अपने आप तू कंफ्यूज हो रहा है और अपने आप पे समझ जा रहा है बिना समझाई। ठीक है, बढ़ू आगे बेटा। हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। अच्छा सर, अब 52 देखो, हो गया। अब काम का बात है और अब मेरे को बताओ कि टाइम कितने बचे हैं। सर 52 हो गया। ओ माय गॉड, लेकिन वेट, जब तक, क्योंकि मैं इतना मेहनत किया हूं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो अब मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने जा रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर, और वो निकालते हैं हाँ, सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एंटी बॉन्डिंग एंड डिवाइडेड बाय 2। ओके बेटा? हाँ सर सर। क्या सर? हाँ, इसीलिए बोलता हूँ ध्यान दो। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA, इट इज माइनस डिवाइडेड बाय 2। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, इसका एग्जांपल? सर n मतलब इलेक्ट्रॉन है ना सर? सर n नंबर इलेक्ट्रॉन ऑफ है ना? इलेक्ट्रॉन। हाँ, Number नंबर of ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ओके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आई बात? हाँ सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। Bonding बॉन्डिंग molecule. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर। चलो हमको और- पता करने दो कि हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है। तो हमको मालूम है कि HH के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर। लेकिन अब हमको MOT के हिसाब से निकालने दो, MOT के हिसाब से। तो हाइड्रोजन, एक H के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अरे H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सर दो सर। ठीक है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन को यहां से भरना स्टार्ट करो। तो मैंने भरा 1 2, भर दिया कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। और बाकी सब खाली रहेगा। हाँ ठीक है, तो अब देखो, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर NB मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है? 2। हाँ सर। 2 लोग मिलके बॉन्ड बनाने लगे हैं, कोई तोड़ने वाला है? नहीं सर। कोई भी नहीं सर, एंटी नहीं। बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नहीं सर। नहीं है, तो वहां 0 लिखो, और क्या, डिवाइडेड बाय 2। चलो बॉन्ड ऑर्डर देखो, 2 माइनस 0 2 डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर आ गया कि नहीं? 1। किसको किसको बात समझ में हाँ आई? सर। एक मिनट सर। हाँ सर, समझ में आया। समझ में सर आया? मेरे को हाँ सर, मेरे को समझ आया सर, मेरे को समझ चलो आया चलो सर। चलो, जल्दी से इसका निकालो, जल्दी से निकालो। हीलियम 2 का निकालो, हीलियम 2 का, जल्दी से। हीलियम 2, हीलियम 2। हीलियम एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जल्दी करो। सर 2 होते हैं सर। दो। तो दो, चार। He2 मतलब ये मॉलिक्यूल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सर इसका भी सर, 1 ही चार। होगा सर। सर इसका भी 1 ही होगा। नहीं सर, 2 इलेक्ट्रॉन कितने, उसका नहीं जवाब दो। सर, 2 होगा। इलेक्ट्रॉन होगा कितने सर। हैं? इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है He2 में? 4 4 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके। 4 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन हाँ से सर, इसका मतलब एंटीबॉडी आप हाँ बोलिएगा सर। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे। हाँ सर सर। तो 2 होगा। 4 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। हेलो, हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, हाँ सर, तो आवाज आ अब रहा देखो हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला। तो NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर इन He2। हेल्प करने वाले लोग कितने थे, बॉन्ड बनाने वाले? अरे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हेलो, कोई जवाब देगा? हेलो सर। हाँ, बॉन्डिंग वाले कितने हैं उसमें? सर बॉन्डिंग 4 है सर। हट, टोटल 4 सर, इलेक्ट्रॉन 2 है, है टोटल सर। 4 इलेक्ट्रॉन है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, कितने सर लोग 2 है बॉन्डिंग में सर, गया? 2 सर। हाँ, सर 2 है चार सर। में 4 में डिवाइड हो गया। 2 लोग दो बॉन्डिंग सर। तरफ चले गए, 2 लोग एंटी बॉन्डिंग में हाँ चले सर। गए। तो हेल्प कितना, बॉन्ड बनाने हाँ के लिए सर। कितने लोग आ गए? 2 2 सर। और तोड़ने के लिए सर 2 सर। 2 2 डिवाइडेड सर बाय कोई 2। नहीं। 2 तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। 0 तो सर 0 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब आंसर क्या होता है? 0 0। इसका मतलब है हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तभी तो बेचारा अकेले रहता है। इसका एटॉमिसिटी 1 है। हाँ सर।
इसका मतलब हीलियम हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। किसको किसको ये बात समझ में आ गया? नहीं है सर हमको समझ में आ गया सर, मीटू। ठीक है, चलो अभी टाइम खत्म हो गया है। इस चीज को हम जारी रखेंगे, इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, इसके बाद कंटिन्यू आप लोग ये करोगे।